Good afternoon to all of you. I am Abul Hassan, Senior Lab Instructor BIT Durg. This video tutorial is especially created for third semester Mechanical Engineering Department students of Bhilai Institute of Technology. So we are here to learn how to create machine drawing by using AutoCAD. So let us start from learning the syllabus, from going through the syllabus. So this is the updated syllabus according to CSV2, and here you are seeing that this is computer aided machine drawing lab. These are the syllabus. These are the topics we are going to cover in this syllabus. So this first topic, code of practice for general engineering drawing, according to BIS, conventional representation of lines, later standard machine components, surface roughness, direction of lay of machining and welding joints. So I think this should be covered in theory part. I will teach you how to apply, how to create all these things by using AutoCAD also, but you must having the basic theory knowledge before that of this topic. If your teacher have not taught you, then you can ask, or I think it is obviously taught by them. And the second topic is limits, fits, tolerances, and representation of dimensional and geometrical tolerance in engineering drawing. So this must also have a theoretical knowledge before applying all this in AutoCAD. Conversion of pictorial view of solids into its orthographic views. So this I am going to taught you how to convert a 3D view, that is a pictorial view of solids, into orthographic views, into 2D views. So for that also we must know the basic tools of AutoCAD, and the drawing tools and the editing tools and the that modify tools. We must having the basic knowledge of that. So let's start from the basics of AutoCAD. Then I will give you some assignment after that, and also tell you how to create drawings in AutoCAD. So this is the AutoCAD window you are seeing here. तो ये आप देख रहे हैं जो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं AutoCAD 2017 एजुकेशनल वर्जन ऑफ AutoCAD, and here you can easily see this icon A. If you click on this, you'll get separate menu over here. यहाँ न्यू के लिए नया फाइल क्रिएट खोलना है आपको. ड्राइंग क्लिक करें तो एक विंडो आएगा, इसमें एक ऐड सेलेक्ट करके ओपन करने से नया फाइल खुलता है. अभी मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ. नाउ गो फॉर ओपन टू ओपन प्रीवियसली सेव्ड फाइल्स. दिस इज सेव to save what the file or what the work you have done. Save as to save in different formats. Import any file from outside. Even you can import PDF file into AutoCAD, means you can convert PDF into DWG file. The condition is that that PDF file must be converted from DWG itself, then only it is possible. Then export, you can directly export in any of the format like PDF, and then you can print it conveniently. Then this is published. You can send directly through mail or to your any of the uh, uh, network person. So this is print. You can directly print it. And drawing utilities, you can set the units and all about from here. Now close current drawing or older drawings. You can close it from here. Now let's see how we can do work on AutoCAD. This is a AutoCAD GUI, graphical user interface. Now the first thing is that you should see this is the toolbar area, and you can easily see that we having the 3D modeling tools shown here. So we can identify that this environment is for 3D modeling purpose. You can see that, but in the beginning we need only 2D. So click on this arrow and go for drafting and annotation. जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये सारे टूल्स आ गए. यहाँ पर ड्राइंग टूल्स है, रेक्टेंगल भी है, ये मॉडिफाई टूल, एनोटेशन टूल, लेयर्स, ब्लॉक्स, ऐसे अलग अलग टूल्स हैं. ये ड्राइंग एरिया है. ये 3D क्यूब सेंटर कहते हैं इसको. इसको आप क्लिक कर, जब कर्सर आप लेके जाएंगे तो हाईलाइट होगा एजेस, कॉर्नर्स, सेंटर.
जो भी व्यू देखना है आप उसको क्लिक करोगे जैसे इसको, तो वो आपको 3D व्यू दिखाएगा। कॉर्नर पे अगर क्लिक करोगे, देखो ये रोटेट हो गया। फ्रंट क्लिक करोगे फ्रंट व्यू दिखाएगा, ऊपर क्लिक करोगे टॉप व्यू दिखाएगा। लाइक दैट यू कैन रोटेट इन 360 डिग्री ऑल्सो, रोटेट कर दे सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट एरिया, यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना है। ओके, दिस इज मॉडल ड्राइंग, you can click on layout 1 to change the layout. This I will tell you later in the course. So today's my objective of teaching AutoCAD is to tell you about the settings, starting settings like limits, units, and zoom, and how to about the coordinate. I'm going to give you a general idea about the coordinate systems. Okay, so today's our first objective is how to set the work area setting. So we can briefly define it as WS settings. WS settings. Second is we should know how to set the limits. Limits command, then units. Before starting any drawing, we should know the unit of the drawing, and then zoom command, and a general idea about the coordinate system. Okay, and and then I'm going to tell you about the how to draw line by using different coordinate systems. Okay, so these are the basic commands that we are going to learn today. So the first thing is WS settings, workspace settings. The full form is of this is workspace settings. सो यू कैन सी दैट वर्क स्पेस सेटिंग्स मतलब आपको यहाँ पर कौन से टूल चाहिए आपके वर्किंग एरिया। ओके, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं 3D टूल्स, 3D बेसिक्स, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लाइक दैट। ओके, ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, इसको नीचे क्लिक करके यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। वर्क स्पेस सेटिंग्स में भी जाके जो कुछ यहाँ आपको देखना है उसको चेक रहना चाहिए। इफ दिस इज चेक्ड हियर इट विल शो हियर। ओके, तो आप सबको चेक करके रखो, बेटर है। यहाँ जो भी चाहिए आप उसको यू कैन सेलेक्ट। ओके, ठीक है, तो ये था WS सेटिंग्स। और सेकंड जो है आप देखेंगे लिमिट्स। लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स क्या है कि अपना ये जो ड्राइंग एरिया ऑटोकैड का है ना, ये इसका साइज, इसका एरिया इन्फिनाइट है, और ऑटोकैड को अपने को बताना पड़ता है स्टार्टिंग में कि भाई आप कितने एरिया में ड्राइंग करने वाले हो, ताकि वो समझ जाए कि 10 में खेलने वाले हो कि 100 में कि 1000 में, उसके हिसाब से जूम करके रखेगा वो विंडो को, आपके ड्राइंग एरिया को आपको फिट टू द स्क्रीन करके रखेगा। ये आपके लिए आसानी के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिमिट सेट करने के पहले आपको ड्राइंग का मैक्सिमम साइज देखना पड़ेगा, उससे कुछ ज़्यादा आपको रखना है, 50 या 100, 50 से ज़्यादा कर सकते हैं साइड में हेडिंग वेडिंग के लिए, डायमेंशंस के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 बाय 70 का एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, अगर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है 100 बाय 70 का, फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल चल रहा है, अगर आपको एक रेक्टेंगल बनाया, आपने रेक्टेंगल बनाया 100 बाय 70 का, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आपको लिमिट्स जो है वो इससे कुछ ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा लेना पड़ेगा। कितना ज़्यादा? 100 है तो 150 ले लीजिए और इधर 100 ले लीजिए, ठीक है। तो ये कैसा पूछता है वो देखिए। लिमिट्स जैसे आपने टाइप करेंगे, लिमिट्स मैंने टाइप किया, अब लिमिट्स जो टाइप कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ये ऊपर में ही यहाँ टाइप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटस बार है, इसको स्टेटस बार कहते हैं नीचे में, यहाँ पर ये डायनेमिक इनपुट ऑप्शन ऑन है। अगर ये ऑन रहेगा तो ही यहाँ टाइप होगा, अगर इसको ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, लिमिट्स आपका टाइप जो है डायरेक्टली यहाँ होगा। इसका डिफरेंस पता चलेगा। डायनेमिक इनपुट ऑप्शन जो है, दिस इज वेरी यूजफुल, दिस इज वेरी यूजफुल। एंड अभी आपको इसको अभी आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डायन मोड। ओके, डायनेमिक मोड। अगर किसी बंदे का यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या है, इसको क्लिक करना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन। देखिए यहाँ पर 3 लाइन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाइए। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस जो यहाँ स्टेटस बार में दिख रहे हैं,
वो यहाँ पर चेकड है। अगर ये चेक नहीं रहेगा तो वहाँ नहीं दिखेगा। अगर डायनेमिक इनपुट को जैसे ऑफ कर दिया, यहाँ होगा देखो वो डायनेमिक इनपुट गायब हो गया। तो यहाँ आके इसको डायनेमिक इनपुट को ऑन करना चाहिए तो ही यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। अब जो भी कुछ आप टाइप करेंगे तो वहाँ ऊपर ही टाइप होगा वो, ठीक है। ये पहले क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब लिमिट्स जैसे देखना है तो लिमिट्स टाइप करिए। जैसे आप लिमिट्स टाइप करेंगे, सॉरी लिमिट्स टाइप करते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर मतलब आपका वर्किंग एरिया जो रहता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का मानता है, तो उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो है WCS के रेस्पेक्ट में, मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ये ओरिजिन है स्क्रीन का, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उस रेक्टेंगुलर एरिया का वर्किंग, उस रेक्टेंगुलर एरिया का वर्किंग एरिया का, ये जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका लोअर लेफ्ट कौन सा पड़ेगा आपके लिए, ये पड़ेगा। तो लोअर लेफ्ट जो है वो आपके यूसीएस के कहाँ पर है, तो डेफिनेटली ये 0,0 पे रखना बेटर है। तो इसको 0,0 है पहले से, एंटर करोगे तो ले लेगा, नहीं तो 0,0 टाइप करना है कीबोर्ड से, एंटर करना है। अब ये बोलता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो ये अपर राइट कॉर्नर कहने का मतलब अपर राइट कॉर्नर WCS के रेस्पेक्ट में कहाँ पर रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर रहेगा। तो इसको ड्राइंग साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये जैसे अभी 100/70 का है तो इससे कुछ ज़्यादा देना है, तो अपर राइट कॉर्नर में दे देता हूँ 150,100 दे देता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर कर देता हूँ। सेट हो गया लिमिट्स। नाउ कम फॉर यूनिट्स, UN एंटर। यूनिट्स का जो कमांड है वो UN एंटर, ठीक है। यूनिट्स टाइप किया तो मैक्सिमम ये सब सेट करना है, डिफरेंट टाइप, लेंथ टाइप। इसमें जो है देख सकते हो भाई डेसिमल है, डिफरेंट इनपुट फॉर्मेट है। जैसे आप लोग देखे होंगे घर पे अगर काम करने आता है कोई तो बोलता है 0 फीट या 1.25 इंच या 0 फीट 0 × 1/16 इंच, आर्किटेक्चर वाले जो है वो ऐसा करते हैं। डेसिमल मतलब डेसिमल में वैल्यू चाहे इंच हो या मिलीमीटर हो, ये फॉर्मेट की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, इंजीनियरिंग में क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 फीट लेता है, दूसरा इंचेस लेता है, एक बड़ा वैल्यू फिर दूसरा छोटा वैल्यू। देन फ्रैक्शनल में देखिए ये है फ्रैक्शनल फॉर्मेट। देन साइंटिफिक मतलब 10⁻² करके जो लिखते हैं, जैसे 5 × 10⁻³ है ना, मतलब 5 के आगे 3 जीरो, ठीक है। तो ये वहाँ सब सेट कर सकते हो, बट आई डू नॉट नीड, आई नीड ओनली दिस डेसिमल, ओके। डेसिमल को भी कम कर देते हैं। यूनिट यहाँ से सेट कर लेते हैं मिलीमीटर, यहाँ एंगल का यूनिट है इसको रहने देते हैं, ये भी चाहिए तो एक 0 सेट कर लेते हैं। नाउ क्लिक ओके, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने क्या क्या सेट कर लिया, लिमिट्स यूनिट्स। नाउ सेट units, zoom is whatever the changes you have made here, you have to reflect in your working area, okay, you have to reflect, so for that type zoom के लिए Z भी टाइप कर सकते हो, एंटर। तो इतने सारे कुछ ये इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इसमें से ऑल ऑप्शन चूज करना है आपको, ए एंटर, ए एंटर। तो ये रिफ्रेश हो गया, पूरा स्क्रीन रिफ्रेश हो गया। अब इस पर आप काम कर सकते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना होगा आपको।